आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी देर हो गई। आप सब लोग से क्षमा मांगते हैं। हमारे परम आदरणीय तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन 1400 किलोमीटर का पद यात्रा तेलंगाना में, 1400 किलोमीटर का तेलंगाना, राहुल गांधी जी जैसे उन्होंने यात्रा किया था। तेलंगाना में जो ऐतिहासिक पद यात्रा हुई थी और उसके नायक वो भट्टी सर है। 1400 किलोमीटर आदिलाबाद से लेकर के कमम तक, और जो सरकार जो तेलंगाना में अब जो आ गई है, हर एक व्यक्ति जो तेलंगाना में कहते हैं, यही बोलते हैं कि रेवंत जी और भट्टी सर के जो कॉम्बिनेशन था वो अपने जगह पर है, लेकिन ये जो पद यात्रा जो उन्होंने किया था उससे पूरा प्रदेश में उसका असर हुआ। दूसरी बात, और फिर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, लगातार तेलंगाना में कांग्रेस को नीचे दिखाने का कोशिश की गई थी कुछ मीडिया के द्वारा। सब लोग नहीं, कुछ लोग बोले कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, 15 बाई इलेक्शन हार चुके हैं, और आपने तेलंगाना में एक ऐतिहासिक रिजल्ट देखा है। उसी तरह से मैं आपको सिर्फ सूचित करना चाहता हूं कि इस देश में इस बार का लोकसभा चुनाव भी एक आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट आपको दिखाई। उड़ीसा में तो है ही, और कल का कार्यक्रम की तैयारी पूरे डिटेल और किस मकसद से राहुल जी उड़ीसा आ रहे हैं, विस्तार से भट्टी सर आप लोग को बताएंगे। और यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आपको कोई भी सवाल करना हो तो मंच पे बैठे किसी भी व्यक्ति से हम लोग उसका जवाब देने को तैयार है। फिर पुनः परम आदरणीय भट्टी सर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उड़ीसा आकर के उड़ीसा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो निस्वार्थ प्रयास कर रहे हैं, वो हम सब उनके आभारी हैं। धन्यवाद। Unfortunately, though Orissa state is very rich in natural resources and a rich state, but the resources of Orissa, less than 2% population of the state is enjoying the entire resources of Orissa state. It is not one day affair, it is not one year affair. It has been more than 2-3 decades. Orissa is a state filled full of weaker sections, underprivileged. If you see the census, or if you see the calculations of the population of these sections, OBCs, SC, ST, minorities put together, it's coming somewhere around 92% of the population of the state. So tomorrow, it's going to be a historical day as far as the Orissa state is concerned. Our beloved leader, Sri Rahul Gandhi ji, is coming here to give the strength to the ideology of the Madhusudan Das ji, to take the heights of the pride of Orissa, and also at the same time, as he has been, Rahul ji, as he has been talking about the caste census for the distribution of the wealth and power as per the proportion to the population of the country and the state. As Orissa being filled with full of STs, SCs, OBCs and minorities, though it is 92%, they are being deprived of their share in the rightful share in the wealth, in the resources and in the power also, for which Rahul Gandhi ji
He has been fighting for this cause throughout the country. Tomorrow being a birthday of Madhusudan Das ji, the Congress party and Rahul ji thought it is an appropriate date to pay our respects and also to give a call to the state of Orissa people, particularly OBCs, SCs, STs and minorities, to raise and ask for the share of the resources and the power. Where Rahul ji and the entire Congress party is going to stand for these two causes. One is the pride of the Orissa, the other one is the share of the 92% of the population of these people of Orissa. Selflessly, our leader Sri Rahul Gandhi ji, he has been talking about this while he was doing his Padayatra right from Kanyakumari to Kashmir. Made an appeal to the people of this country saying that the resources, wealth, the power and everything, it has to be with the people of this country. But unfortunately, in this country, under the leadership of Modi ji as the Prime Minister, Bharatiya Janata Party government, trying to alienate the wealth and resources of this country to the crony capitalists of friends of Modi ji. This has been witnessing for more than a decade. But whereas Rahul Gandhi ji is fighting unilaterally, saying that these entire resources, instead of giving it to crony capitalists of Modi ji, it has to be with the people of this country and people of to this country. तो सभी कांग्रेस के लीडर से बात करने के बाद वहाँ के लोकल लीडर्स एक ही नाम आया है, सोफिया फिरदौस जी का। तो उसको एक मिनट पहले एक तो जवाब तो दे दें। एक मिनट, हाँ करेक्ट, सॉरी, राहुल जी के प्रोग्राम के बारे में, राहुल जी का प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स आप बता देते पहले। 12 बजे लैंड करेंगे भुवनेश्वर, वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे मधुसूदन बाबू के जन्म स्थल, वहाँ पर हम अपने श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद वापस हेलीकॉप्टर में बैठ करके सालेपुर जाएंगे मीटिंग ग्राउंड में। मीटिंग 1 घंटे के आसपास की होगी। वहाँ से वो रवाना हो जाएंगे वापस भुवनेश्वर के लिए और फिर उनको पहुँचना है दमन। राहुल जी ने कहा था कि 28 तारीख को परम आदरणीय मधुसूदन बाबू का जन्मदिन है। उनका प्रोग्राम पहले सिर्फ दमन में था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम मधुसूदन जी के वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। उनको श्रद्धांजलि देने के बाद पब्लिक मीटिंग करने के बाद वो दमन जा रहे हैं, क्योंकि वो दमन का मीटिंग पहले सुबह था, अब उसको 5 बजे कर दिया, 4 बजे कर दिया। ये संक्षेप में वो प्रोग्राम का जो है मोटा मोटा जो है एक खाका है। और कोई सवाल इस पर? रोड, अच्छा एक मिनट, सवाल रोड शो इसलिए नहीं है, वो चौपर से आएंगे और फिर से चौपर से चढ़ करके सालेपुर जाएंगे। कल का दिन को हम बोरिया कितना याद कर रहे हैं या भूल गए हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और कल का दिन को सम्मान करते हुए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ओडिशा के उस पुण्य भूमि पर आ रहे हैं, सत्यभामापुर में, जहां पर ओडिशा के नव निर्माता पैदा हुए थे और तांकर एंतुरी सागर को दर्शन करने आवश्यक एवं ओडिया प्राइड थे उत्कल गौरव मधुसूदन दास।
ते केते कष्ट करथिले ओडिया को संगठित करबा पाए, ओडिया भाषा को, ओडिया रो आइडेंटिटी को, एपरि कि सब किछि परिशेष रे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ग्रो करबा पाए मध्य उत्कल टैनरी आरंभ करथिले, चरखा आरंभ करथिले एवं आर्ट वेयर आरंभ करथिले। विभिन्न भाव से उद्यम करी उत्कल ओडिया लोक को संपन्न करबा पाए, निर्माण करबा पाए चेष्टा करथिले। एडे बड़ महान व्यक्तित्व प्रथम वकील थे, बंगाल काउंसिल रे प्रोविंशियल काउंसिल रे सदस्य थे, ओडिशा प्रतिष्ठा 1836 रे अप्रैल 1 रे प्रतिष्ठा करते। किंतु आज आमे तांको भूली जाउ। आज काहे कि राहुल गांधी जी ऑप्शन ना आज जणे नॉन ओडिया रूलिंग पार्टी आज 24 वर्ष धरी ओडिशा रे अछि, जणे नॉन ओडिया ओडिशा राज्य रे विभिन्न निर्वाचन मंडली रे प्रचार करि बुलुछंती। ओडिया नेता केही जाय कि बीजेडी पार्टी पाई वोट मागु नहांती, जणे नॉन ओडिया जाउछंती। या हमर अवस्था आमे भूली जुवा कथा दोह जे आदि मधुबाबू जो ओडिया को संगठित करिबा पाई, ओडिया रीजन को एकत्रित करिबा पाई उत्कल सम्मेलन करथिले, उत्कल यूनियन करथिले। आज सेही ओडिया आमे सब किछि भूली जाउछु, जण नॉन ओडिया गां गां रे विभिन्न निर्वाचन मंडल रे जाई बीजेडी रो मंग धरिसंती एवं लोके ताको देखु वोट देबे या से आशा करछु। गोटे दुर्भाग्यजनक परिस्थिति आसीछि ओडिशा पाई। सेठी पाई ओडिया को एकत्रित हबार समय आसी, ओडिया को एकत्रित करिबार समय आसी आ कांग्रेस पार्टी उद्यम करूछि। ए मधुबाबूकर ए जयंती सामने रे जब निर्वाचन आसीछि एवं मधुबाबूकर भावना ऊपर प्रहार होछि, मधुबाबूकर विचार ऊपर प्रहार होछि। ताकर एक्टिविटी जो थिला ओडिया को संगठित करी एकत्रित करी मजबूत करिबा पाए तार ऊपर प्रहार होछि। सेठी पाई आज आमर नेता श्री राहुल गांधी जी आज सेही पीठरे आसी सेही स्थान रे सालेपुर रे भाषण देई लोकन को उद्बोधन करिवे एवं ओडिशा कांग्रेस निर्वाचन सभा से शुभारंभ करिवे। आपण माने ए गुरुत्व को विचार करंतु। ओडिशा कांग्रेस रो उद्यम ए निर्वाचन माध्यम रे ओडिया को संगठित करिवा, ओडिया को एकत्रित करी ओडिशा सुरक्षा करिवा, ओडिया को बंचेबा।